Okay, so coming together is a beginning, keeping together is a progress, and working together is a success. It was indeed this mantra of working together that has brought up where we are today. A very good and warm morning to everyone assembled here. I am Tisha Rotela, the Vice President of Vanijay, and along with Mansi Negi, I take privilege of welcoming you in Corpomaze, the Commerce Fest of Acharya Narendra Dev College, and it is our pleasure to welcome you all to this wonderful event. Last year, at the end of February, we had our Corpomaze in person, but due to current situation, we had to make it virtually. But that has not pulled down the enthusiasm for sure. Let's recall the Corpomaze 2020 and live the memories again. Here is the glimpse. That was indeed a nostalgic video that brought all of us down the memory lane. Now it's the time for a wonderful performance by Rishabh, who is in second year student, and along with Jayant, who is currently in the first year. So let's begin. Raghav and Jayant, are you guys here? Yes, I am here. All right, so we'll start with the performance by Jayant. So yes, Jayant, you can turn your camera and mic on and start with the performance. Okay, so can I start? Yes, 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 sure. देर लगी लेकिन मैंने अब है जीना सीख लिया जैसे भी हो दिल मैंने अब है जीना सीख लिया अब मैंने ये जाना है खुशी है क्या गम क्या दोनों ही दो पल की है रुतें कब रूठे कब मने यही तो है यहाँ देर लगी लेकिन मैंने अब है जीना सीख लिया आंसुओं के दिन मैंने अब है जीना सीख लिया अब मैंने ये जाना है
कैसे कहूँ अपना जिंदगी तो है जैसे कारवां, तू है तन्हा कब यहाँ, सभी तो है यहाँ। देर लगी लेकिन मैंने अब है जीना सीख लिया। Thank you. That was indeed a wonderful performance, Jayant. Now I would like to call Rishabh from the second year to please begin with this performance. Hello. Should I start? Yeah. अभी अभी ये हुआ यकीन कि आगे है मुझ में कहीं हुई सुबह, मैं जल गया सूरज को मैं निगल गया रूबरू रोशनी रूबरू रोशनी धुआं छटा खुला गगन मेरा, नई डगर नया सफर मेरा, जो बन सके तू हम सफर मेरा, नजर मिला जरा धुआं छटा खुला गगन मेरा, नई डगर नया सफर मेरा, जो बन सके तू हम सफर मेरा, नजर मिला जरा आंधी उसी जगह रही है लो मेरी, अब मशालों सी बढ़ रही है लो मेरी, नमो निशान रहे ना रहे ये कारवां, रहे ना रहे उजाले में पी गया रोशन हुआ जी गया क्यों सहते रहे रूबरू रोशनी रूबरू रोशनी। Thank you. Thank you so much, Rishabh and Jayant, for this spectacular performance. And it is a pleasure to listen to you both. Once again, thank you for this great musical performance. And if is it possible, so Rishabh, can you sing one another song for us? Yeah. We request you to please sing a song. It's Okay. really good. Yeah. Yeah, Go ahead. that Yeah. is indeed melodious. Yeah, please. Yeah. Thank you. What type of song should I sing? Because I'm Any not Any, sure what to any sing. song, any song, Okay. beta. Okay. I was just trying out a song, so I'll sing that. yeah, sure. Go. तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा,
तू चुप है तो लीडर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा, तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं. That's it. Thank you. Thank you for this wonderful performance once again, Rishabh. Now I would like to call Jayant to please sing one more song for us because the audience is demanding Jayant. Actually, my voice is cracking, so which song Actually, should it's I not play? any song. Maybe the one that you sang, you sang during freshers or any which you like. Okay, yes, I'll sing O Sanam by Lucky Ali. Oh, Yeah, that's yeah, great. perfect. Okay, so may I start? Yes, yes. Yeah, शामों सवेरे तेरी यादें आती हैं, आके दिल को मेरे यूं तड़पाती है. ओ सनम उन यादों की कसम, मिलके बिछड़ना तो दस्तूर हो गया, यादों से तेरी मैं जो दूर हो गया. ओ सनम उन यादों की कसम. समझे जमाना के दिल खिलौना जाना है अब, क्या है दिल का लगाना नजरों से अब, ना हमको गिराना मर भी गए तो भूल ना जाना. आंखों में बसी हो फिर भी दूर हो कहीं, दिल के करीब हो ये मुझको है यकीन. ओ सनम उन यादों की कसम. Thank you. thank you so much, Jayant. It was really a very wonderful performance. Thank you so much. Yeah, you can see the comment, you can read the comments in the chat box. The audience really enjoyed it a lot. So next we have a video which will be played by Vivek Taneja, who is a third year student, and he'll be joining in a while, and he'll present his screen, and then there is a surprise for you all. Tisha, just brief us about what this movie is about.
Okay, so this movie is about the college days, and this is prepared by the first, second, and third year students, and you will get to know different looks of your senior that you have never heard of. So I will not give, no more information. When you see the video, just let me know in the comment box that how was the video. So you have to just wait for 2 to 3 minutes. Till then, he'll be presenting his screen, and if anyone else is interested in singing, so he or she can, of course, go ahead. It will take time. Yes, ma'am. I'm just asking Vivek Bhaiya to present his screen and he's just connecting. Okay. Till then, I would like to ask the first year students, are you guys enjoying Copperways? You can either turn your mic in order to answer or you can write in the chat box. That's all up to you. Okay, so I'm getting good comments. Thank you so much, everyone. Keep this excitement till the end. Glad to know that you guys are enjoying it. Shivam Trivedi sir will join at 9:30 as was written in the itinerary or the program schedule that we have forwarded in your groups. So just wait for a while. Till then, just watch the video. Vivek Bhaiya, are you here? Yeah, yeah, just a minute. All right, perfect. And students have really worked hard to make this movie. I can vouch for this. And I think others, after watching this movie, they'll also feel the same. Exactly. That is totally. It is a very relatable movie, and you all are going to love it. I'm very sure about it. Um, All yeah, Teacher, you can request students to join our YouTube channel. Not many must have joined. Please request them till Vivek does the needful. yeah. I was about to say this. So, since we have the strength of 300 students in our commerce department, and as much I can see that on a YouTube channel, there are around 190 subscribers. So, I request everyone to please subscribe to the YouTube channel. And Vivek Bhaiya has started presenting. So, here's a surprise for you all. Is my screen visible? Yeah, Yeah. perfectly visible. Mm, I'm beginning. Start young, there's a reason for that. Cause you get the wrong one before swinging the bat. So we started early, early, but way, way back. And the bodies adjusted for a better attack. So we tried and we learned every day. Getting better every day, learning every new way. Learn your mind, are you ready for that? Hello. Hello.
मेट्रो कार्ड ये लो, राशन कार्ड। राशन कार्ड क्यों चाहिए? राशन कार्ड के बिना एंट्री नहीं मिलती। कॉलेज में राशन कार्ड का क्या काम है? कल को तुझे जब भूख लगेगी और तेरे पास खाना नहीं होगा, लंच नहीं होगा, तो तू कहाँ से लाएगा खाना? राशन कार्ड से 2 रुपए किलो में चावल तो लेके आएगा, बनाएगा कॉलेज में बैठ के। चल पैसे निकाल। किस बात के? अरे पैसे तेरे को बताया नहीं तेरे को सब कुछ। 500 रुपए निकाल। फाइन 500 रुपए निकाल अभी। ये लो रखो। और किस बात के? टाइम खराब किया मेरा, उसके पैसे कौन देगा? जल्दी निकाल जल्दी। ये लो रखो। और जीएसटी, अरे अरे वापस का जीएसटी 28% है, जल्दी निकाल जल्दी। अरे निकाल ना, चल दो। अच्छी कमाई तो आज तो ठेके पे चलेगी सबसे पहले। अरे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमारे कॉलेज में दिया गया। ओए रशी है क्या? चला जा, तुझे कॉलेज का टूर कराता हूँ। मत यार, मैं तो बिगड़ा हुआ तो थोड़ी ना हूँ, सीनियर हूँ तेरा। बस ये सब तो बस स्टेशन है अपना। 2 मिनट वेट कर, मैं एडमिट हो गया, ठीक है? नहीं रहने का। आराम से जाना। क्या हो गया? अरे था कोई नंबर का छू। वीडियो में गाली देना मना है। मैं आराम से ठीक है? भाई तुम जानते नहीं कि नहीं कौन नहीं है? अभी अपने कॉलेज से कालीन भी आई है, थोड़ा आराम से, ठीक है? तुम तो बीकॉम के हो ना बे, बताओ इनको हमारे बारे में। हटो। खाली में यार जितना भी अपने कॉलेज का नोट्स और असाइनमेंट है ना, और सभी दिन यहाँ जुगाड़ होता है। भाई हमारी कुछ करवा दिया। रुक जो खाली में बोलता हूँ। खाली दिया। खाली भैया यार नया बच्चा है, थोड़ा इसके नोट्स और असाइनमेंट प्रबंध करवाना, देख लीजिएगा। आते ही शुरू कर दिए। जी भैया हो जाएगा तो सही रहेगा। करवाते हैं प्रबंध। ये अपना कॉलेज है, ठीक है? यहाँ बंदे क्लास से ज्यादा वर्चुअल मिलेंगे, कैंटीन में घूमने यार कोई इंसान नहीं, क्योंकि अपना ही कॉलेज है। ये बताओ इस बार कॉलेज की फ्रेश पार्टी में क्या करेंगे? फैशन शो रखवा दो। मुद्रा ना रखवाते हैं हम। देखो रन इस वीडियो में गाली देना मना है। ठीक है, आजा। अब मैं तुझे दिखा रहा हूँ अपने कॉलेज के बहुत डेंजर जगह, ठीक है? यहाँ शाम को अकेले नहीं आने का। क्यों यहाँ भूत मिलता है? नहीं, लेकिन उसी से मिलता जुलता चीज मिलता है, ठीक है? हाँ फ्रूट। अच्छा ठीक है। भैया मेरी क्लासेस का टाइम हो रहा है। क्लासेस काफी होती है यहाँ पे। तेरा रूम शायद 3rd फ्लोर 69। ठीक है बाय, मिलते हैं बाद में। जाना। क्या हो गया भैया लग गए। क्यों, क्या हो गया?
अरे वो एडमिन ब्लॉक के बाहर से गाली बकी थी ना, हाँ वो प्रोफेसर है मेरा। अब तो बेटा चल लग गए, आपको साथ नहीं क्लास में जाके आजा मेरे साथ ही चल, कॉलेज में लाता हूँ तेरे को मैं। अरे भैया वहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगी है? अरे भाई श्वेता के बारे में नहीं सुना क्या तूने? कौन? अरे वो इंस्टा वाली। अरे वो, हाँ भाई अपने कॉलेज की श्वेता है वो। अरे भैया इस पंडित का क्या हुआ, कुछ पता है आपको? वो पंडित उसके बाद वो कॉलेज में दिखा ही नहीं। वो सब छोड़ यार, चला जा बाहर चलते हैं। अच्छा दोस्त, अब मैं चलता हूँ। मतलब? ये मेरे कॉलेज का आखिरी दिन था। आज हम सभी सीनियर्स अपने जूनियर से कॉलेज का टूर करवा रहे थे। ये कॉलेज सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है, ठीक है? यहाँ तुम्हारी पूरी जिंदगी है। Artificial love, I will try to understand mankind. But we do the dumb shit that we do, but we hurt the most when it's true. But we jump the gun, killing all the fun that we simply don't. If you just let me run without fear, run till the wind blows away the worries out of your hair. Hey, run till you no longer feel all the pain that's too real for today. Run without fear, there will never be injuries that cause us to fear. That we can't heal as the saying, have some faith. Thank you so much, Vivek Bhaiya, for playing this amazing video, and that is totally relatable. And we are really missing our college, and we hope that our college reopens soon. So now, I would like to request Pranshu to please present his screen. Okay, so a leader is one who lights the path to the impossible and takes who follow to great heights. It is an injustice to proceed to the event without calling upon our wings of flight, our pillar of strength, and our constant source of motivation. We cordially invite our teacher in charge, Dr. Shalu Mahajan ma'am, to address the gathering. Thank you, Tisha. And I think you have exaggerated my intro. I'm just trying to give you all wings so that tum sab udu sako. In my inaugural address, I can start or I can begin by saying that, gone are the days when college life meant only academics and students used to focus on just attending lectures or maybe writing exams. The college and universities of late have started organizing college festivals to encourage their students, to participate and showcase their talents. Students also take active part in organizing these festivals and events wholeheartedly. These multiple cultural events somehow, as per me, it makes them job ready. Why I'm saying so? Because not only they provide educational benefits, but at the same time, it promotes social interaction and development of some soft skills also. These days, employers, seek candidates who can think out of the box and possess good communication skills.
and those capable of multitasking are better hired also. So while organizing these events, I'm sure students need planning, organizing, balancing, multitasking, and so on. I personally believe in the overall development of an individual's personality. So I wish best of luck to Team Vanijay. The team has really worked hard to shape up this event, and Team Vanijay comprises of both students and teachers. Thank you, Pratishtha, our society president. Thank you, Tisha, the vice president, Kashish, the secretary, Raghav, the treasurer, Deepak, also, Pranshu, and many more students, which I'm sorry I'm forgetting your names, but I know you have worked wholeheartedly. And teachers also, I would like to name the Vanijay team comprising of the faculty. It's Dr. Surender Kaur, Dr. Sandeep Kumar Goyal, Ms. Poonam Chauhan, and CA Yask Sen, Mr. Ankit Singh. Sorry, Jitender. He is my, I can say, a helping hand. He is the co-convener of teacher, co-convener of Team Vanijay, and I wish best of luck. And I think our guests have also joined, so won't take much of your time. And बस सबको पंख देना चाहती हूँ, खूब ऊंची उड़ान भरो और आगे बढ़ो. Best of luck once again. Thank you so much, ma'am, for the encouraging words. You have always shown us the right direction. We are grateful to have your support with us. Thank you so much, ma'am, once again. And now it's the time for the talk show. I'm profoundly elated to take an opportunity to introduce our chief guest of the day. He is a YouTuber and a content creator. Yes, I'm talking about none other than Shivam Trivedi, sir. On behalf of the management, I thank him for providing his gracious presence to enhance our joy. Sir, the stage is all yours now. Okay, so first of all, thank you so much. I hope you can hear me. एक बार कहीं से confirmation मुझे मिल जाए कि guys you can hear me so I can start. We can hear you, Shivam. We can hear Okay, so thank you so much everybody for having me first of all, and सुबह सुबह उठाने के लिए I am sorry but मेरी भी आदत छूट चुकी है सुबह सुबह उठने की लॉकडाउन की वजह से. So thank you so much for being here, and I hope आपका फेस्ट बहुत अच्छा जाए. And I am actually very nervous इस सब के लिए because real life में flow में निकल जाता है, but यहाँ पे थोड़ा घर पे it's also awkward because I can't see any of you. I can just hear, and थोड़े बहुत ऐसे छोटे thumbnails दिख रहे हैं. So first of all, I have my script इधर, क्योंकि if you guys can do your exams with phones, तो ये तो फिर भी online है तो चलेगा I guess. So first चलेगा of all, sir. right, so yeah, it will be actually great if you can maybe unmute or थोड़ा बहुत interact बीच में कर सके so that I can feel fine, because let's be honest, 2 साल पहले तक यार मैं भी एक college student हूँ मुझे भी बहुत nervousness हो रही है. This is my first event, so I really hope it goes well. So basically, those of you who don't know, I make comedy videos online, and basically I'm a roaster. So yeah, if you guys want कि I can roast your college, तो यहाँ पे होता है कुछ जूम पे नहीं, सॉरी गूगल मीट पे हैंड रेज या कुछ करने का, बट मुझे पता है कि अंदर अंदर सब चाह रहे होंगे कि आई शुड रोस्ट योर कॉलेज. सो इफ यस आई वुड लाइक इफ एक सेकंड सॉरी okay I'm getting notifications that so many people have raised their hands. Great then. So teachers को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज इन लोगों के नाम नोट कर दिए जाएं एंड इनको डील करा जाए जब कॉलेज में वापस आए. सो नो, you cannot roast your college, हम ऐसे नहीं कर सकते हैं. So basically I will have to talk about a few things जो मैंने तुम्हारे कॉलेज के बारे में सुनी है, like main gate से related, back gate से related. I'm not sure and I can't say anything ढंग से, but मैंने बहुत कुछ सुना है. So guys, अभी तक hands raise हो रहे हैं so I am feeling very fine. So yeah, I think I've skipped a few points, so here and there याद रखना यार, क्योंकि honestly मैं एक इंजीनियर हूँ
एंड हमें बिल्कुल चीजें याद नहीं होती हैं, एंड ये मुझे एग्जाम्स में भी बहुत दिक्कत देती थी. सो बेसिकली मैंने 2 साल पहले ग्रेजुएशन की है, एंड भाई यार ये सब तो मैंने बोल दिया है. आई एम सो सॉरी. सो yeah, so I just wanted to say कि ये जो टाइम है सुबह सुबह उठने का, अगर पीछे से कोई नॉइसेस आए कबाड़ी वाले की, घंटियों की, सो प्लीज समझ जाना कि ये सब हम दिल्ली से हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड. सो दूसरी चीज ये है कि अबाउट योर कॉलेज, पता है मेरा एक स्पेशल कनेक्शन है आपके कॉलेज से, बिकॉज माई फैमिली used to live in Govindpuri for like almost 20 years, but जब मैं पैदा हुआ तो वो यहाँ आ गए. So by the way, I live in Northwest Delhi, exact नहीं बता सकता, but the thing is, I did not get a chance to be a South Delhi boy. Like baya, I hope आप में से काफी लोग South Delhi girls and South Delhi guys होंगे. So I did not get a chance for that. So my sister was born there, a lot of my family members were born there, but yeah, I am not a South Delhi guy. So आपके कॉलेज तक लास्ट ईयर मेरे को अप्रोच किया गया था. सो लास्ट ईयर पहुंचने में मैंने एक बार बस गलती से मैप खोल लिया था मेट्रो का, एंड आई केम टू नो के अरे क्या दिस आई टोल्ड यू देयर इज सब्जी वाला गोइंग. दिस इज सो एम्बैरेसिंग, बट आई होप ऑल ऑफ यू कैन रिलेट, क्योंकि आजकल तो बस पूरे दिन यही सब लगा रहता है. सो या लास्ट ईयर ना मैं आपके कॉलेज तक आने का एक बार बस मेट्रो में मैप देख रहा था, एंड मेरा दिमाग ऐसे मतलब घूम गया, क्योंकि कितनी लाइनें हैं, वायलेट लाइन, रेड लाइन, ये लाइन, वो लाइन, मजेंटा लाइन. आई जस्ट गॉट कंफ्यूज्ड, एंड मैंने एक बार ट्राई करा था गोविंदपुरी जाने की या कालकाजी जाने की, एंड मैं कश्मीरी गेट से आगे ही नहीं बढ़ पाया, बिकॉज कश्मीरी गेट पे देयर इज अ ह्यूज मैकडॉनल्ड्स, एंड वो मैकडॉनल्ड्स देख के बस मैं वही था फिर पूरे दिन. सो दैट यू कैन जज बाय माय अपीयरेंस, बट ऑनेस्टली ऐसा है, लॉकडाउन में सबका वेट बढ़ा है, सबका वेट बढ़ा है. यू हैव टू अग्री. मुझे पता है एक इंसान ऐसा जरूर होगा जिसने भैया 6 पैक एब्स बना लिए होंगे लॉकडाउन में, बट प्लीज 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 सर, प्लीज लेट अस हैव आवर मोमेंट. तो इट्स ओके. सो द अदर थिंग इज, ये सब मैंने लिखा था कि मैं शुरू में इंट्रो दूंगा, बाकी तो देखो मुझे जनरली ऐसे ही इंटरेक्ट टाइप का करना पड़ेगा, बट और कुछ है एक्चुअली नहीं पता. ये चीज भी मैंने लिखी है कि मुझे पता है कि मेरा जो कंटेंट है ना वो 2 मिनट में निपट जाएगा. सी मेरे वीडियोस 7-8 मिनट के होते हैं, मतलब मैं हफ्ते भर में मेहनत करके 7 मिनट निकालता हूँ. सो यू कैन इमेजिन कि यहाँ पे आई एम शॉर्ट ऑफ कंटेंट, बट द थिंग इज आई वांट टू लाइक maybe agar it is allowed that I want to ask you guys like how is your college life, because I want to talk to you. Then I have a special rap. agar aap mein se kisi ne mere videos dekhe hain, by the way लिखा रहा है ना, हाँ. सो जिन लोगों को नहीं पता, आई एम शिवम त्रिवेदी, आई मेक वीडियोस ऑन यूट्यूब. अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि हमेशा ना एंड में एक रैप सॉन्ग, एक वैसा सॉन्ग टाइप का जरूर होता है. सो आई हैव दैट हियर फॉर टुडे, लेकिन तो हम बाद में करेंगे. सो उससे पहले आई जस्ट वांटेड टू नो अबाउट योर कॉलेज लाइफ, बिकॉज आई नो कि कितना डिफिकल्ट हो गया होगा ये कोविड के टाइम से. बिकॉज ऑनेस्टली कॉलेज के बारे में मेरी सबसे अच्छी मेमोरी क्या है, obviously not exams, practicals, ये वो assignments, कुछ भी नहीं. Okay, I can see your call, I can see your messages. So ये मेरे को खोलना देखना पड़ेगा कहाँ से I can see, because I genuinely want to read. But yeah, so college की memories यार सिर्फ और सिर्फ friends के साथ वो घूमना फिरना और यही सब तो होती हैं, and वो अब तुम लोग कर नहीं पा रहे हो. I think इसका फायदा भी है, because I think तुम्हें एग्जाम्स वगैरह में बहुत छूट मिल रही है, बट दैट्स आई अंडरस्टैंडेबल कि यू नो दिक्कत होती है उसमें रियल लाइफ में. एंड आई नो यू गाइस मस्ट बी बोर्ड, क्योंकि मैं हो चुका हूँ, एंड जबकि मेरा तो पूरा प्रोफेशन ही घर पे बैठ के वीडियो बनाने का है. आई एम बोर्ड, तो आई कैन अंडरस्टैंड फॉर यू गाइस. सो एनीवेज, आई स्टिल हैव नो आइडिया वेयर आई कैन रीड दी. अच्छा, रीड करने के लिए मुझे सेपरेट विंडो में जाना पड़ेगा. सो आई कैन सी अ लॉट ऑफ लाफिंग इमोजीज. So thank you so much. But इससे मैं okay, somebody said, Aditya said I lost 2 kgs. Aditya, I am jealous of you. School में हूँ. Okay, oh thank you so much Ragini. I think a few of my subscribers have come here also, क्योंकि मैंने अभी जल्दी से एक स्टोरी डाल दी थी कि कोई तो आए जिनको मैं थोड़ा बहुत पहले से जानता हूँ. But I have a lot of people that I know here ANDC से, and I am actually you know looking forward कि हम क्या इंटरेक्शन करते हैं. तो आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, बट अगर आप लोगों ने बिग बॉस देखा है तो आई कैन टेल यू कि आप लोग देख नहीं रहे हो. So only Big Boss fans will get this reference. But anyways, I just wanted to talk about
माई कॉलेज लाइफ, बिकॉज ट्रस्ट मी ऑन दैट. अब ये हो गया फोन का काम, ठीक है, ये मैंने लिखा नहीं था अब. सो आई जस्ट वांटेड टू से, ये थोड़ा सीरियस सा होने वाला, आई डोंट नो, बट कॉलेज लाइफ इज द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ ऑनेस्टली. एक तो चीज है कि भाई अपने करियर और ये सब चीजों की टेंशन प्लीज छोड़ दो, क्योंकि मुझे पता है कि अपनी 90 किसका मैसेज आया, सॉरी, 90% ऑफ द कॉलेज लाइफ मैंने ऐसे ही निकाली है कि क्या होगा, व्हाट इज गोना हैपन, ये वो. एक जॉब, दो आएंगे, एक जॉब के लिए पूरे 4 साल निकाल दिए. एंड गाइस गेस व्हाट डिड आई डू, एंड में वो जॉब क्विट कर दी मैंने, एंड आई बिकेम अ यूट्यूबर. सो ये जो चीज है ना कि जॉब, क्योंकि मुझे अभी भी आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स हु आर डूइंग एमबीए, ये वो, एंड दे आर सो मतलब डाइंग टू get a job or dying from their job. सच में ये भी होता है कि people who have their job, भाई 2-2 3-3 साल बाद सब मरने की हालत में है. तो please take care of your health. See who's talking पहले तो देखो, but please take care of your health, take care of your mental health, please. It is not the end of the world. तुम सब लाइफ में सक्सेसफुल होने वाले हो, सबको लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा मिलने वाला है. अभी नहीं, maybe 5 years down the line, everything's gonna be sorted. Please enjoy your life. This is the biggest regret I have from my college life, because मैं पूरे दिन traveling, एक तो मेरा कॉलेज नोएडा था guys, सबसे बड़ी बात, और मैं यहाँ चलो बता ही देता हूँ, मैं यहाँ रोहिणी में, रोहिणी से नोएडा, नोएडा से रोहिणी, मेरी जिंदगी मेट्रो में निकल गई. The other thing, उसके बाद पढ़ाई, असाइनमेंट्स, ये वो, एग्जाम्स, प्रोजेक्ट्स, प्लेसमेंट्स, उसके ऊपर से I used to make videos, and then कॉलेज में वो देखा देखी, I used to go to the gym also. तो it was really difficult. तो प्लीज अपनी लाइफ एंजॉय करो, बिकॉज you're gonna miss this. I know तुम्हारा तो वैसे आधा हो गया है यार फन, क्योंकि because of COVID and shit. So I just can't imagine कि तुम लोग किस माइंड स्टेट में होगे, बट प्लीज ट्राई टू एंजॉय एज मच एज यू कैन. अभी थोड़ा बहुत खुलने लग गया है तो have fun, go out with your friends and stuff, because this time will not return. It is the best time of your life. And the other thing, मैं अभी कमेंट्स पढ़ लूं, कमेंट्स खुलेंगे कहां से ये नहीं पता मुझे. Okay, so see, oh my god guys, मेरी गली के 2-3 बच्चे हैं, बहुत इरिटेटिंग है. सो वो चीखम चिल्ली मत, अरे anyways I cannot say anything about it, so कोई नहीं, हम डील कर लेंगे इससे. बट द थिंग इज के आई गेस 2-3 लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े कि हाँ, they want me to talk about my college experiences. So honestly, first of all, I need a hanky because the heat. एक तो you know what, मैंने अपने वीडियो में भी बोला था, ये दिल्ली का मौसम, it is like सर्दी 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 गर्मी, and then it's गर्मी forever. क्योंकि ऐसे मौसम चेंज हुआ है ना guys, you have to accept कि अगर तुम कॉलेज जा रहे होते ना, तुम गए होते लिटरली स्वेटर और ये सब पहनकर, तुम वापस आए होते टी शर्ट से. शट अप सिरी. So literally दिल्ली का मौसम बहुत गंदा हो गया, और ऐसे गंदा हो गया, and let's be honest, अभी ऐसे ही रहने वाला है जिंदगी भर. So my there comes कबाड़ी वाले भैया. So I hope you guys don't mind. क्या पता उनके पास मेरे से बेटर कंटेंट हो. So anyways, मैं कह रहा था कि कॉलेज के बारे में मेरे एक्सपीरियंसेस. ऑनेस्टली मैं एक बात बताऊं तुम्हें, कॉलेज के फ्रेंड्स वगैरह प्लीज सिलेक्टिवली और ढंग से चूज करना, बिकॉज दे आर गोना बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. एंड आई होप तुम सुन नहीं पा रहे हो. So they are going to be a part of your life, and they are going to decide what your future looks like. Because honestly, काफी लोग हैं जिन्होंने मेरे वीडियोस इन्फ्लुएंस करे हैं, जिन्होंने मुझे वीडियोस के आइडियाज दिए हैं, जिन्होंने मुझे वीडियोस बनाने से रोका भी है, जिन्होंने मेरे वीडियोस प्रमोट करे हैं इधर उधर. एंड जो भी आपका पैशन हो, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ पढ़ो 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 पढ़ो. If you want, you can study and still succeed. बट अगर आपका और भी कोई पैशन है, आई एम द लास्ट पर्सन जो तुम्हें बोलेगा प्लीज स्किप इट और मे बी साइड में कर लो. नो, प्लीज फॉलो योर पैशन. यू डोंट नो कि क्या हो सकता है. आई एम नॉट सेइंग कि आई हैव अचीव्ड अ लॉट, but I know I have a long way to go, and at least I have that happiness that okay, I am doing something that I love. और ये भी मैं बता दूं कि ऐसा भी जरूरी नहीं है कि if you are doing something passionately, things are going to be easy. No, they are not going to be. There are going to be days which will be awful. Like अभी देख लो, I have to do this event, I have to go meet a friend, I have to upload a vlog, and I have to write script for my main channel. और वो वीडियो पता है कब अपलोड होना था?
3 days ago. Like 3 days ago का अभी लिखा भी नहीं है मैंने. So I am gonna do that and things are not gonna be easy. कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन वो सबकी लाइफ में है. Every profession has their difficulties, has its pros and cons अगर कह लो, but it's all up to you what you want to do. Or somebody said procrastinator. See, I am a procrastinator, but I think we all are. So यही है कि चल रहा है काम अभी. But the other thing is college, right? I was talking about college friend. So बहुत important है ये सब करना, and college friends ढंग से decide करना. College में आप क्या करना चाहते हो, क्या. I am getting distracted by the comments, so thank you so much for the appreciation जो भी दे रहा है. So yeah, so basically that is it. I would say कि I pretty much wanted to say all of this कि हाँ college में you know top 5 books that you have influenced that have influenced you the most. I'm sorry. Yeah, so honestly I am that type of person. I don't know, I know बहुत कम मिलेंगे तुम्हें, but मैंने ये सीखा है honestly कि भाई, also guys, वो नहीं होता challenge के take a shot of water every time I say honestly. तो तुम कर लेना अपने घर पे, because I know there are some words I say a lot. So honestly मैं ये कह रहा था कि बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं पढ़ो 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 बुक्स पढ़ो, नहीं ये करो 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 एक्सरसाइज करो 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 ब्रीथ ब्रीथ. You do you, ठीक है, अपने हिसाब से करो. I am that type of person. मैंने कभी बुक्स नहीं पढ़ी है. There's just one book I have read and that is The Secret. काफी लोगों को उसके बारे में पता होगा, and अगर नहीं भी पता तो भाई मैं एक सेंटेंस में बताऊं तो it's the law of attraction. जो चाहोगे जिंदगी में कायनात तुम्हें उससे मिलवाने के लिए जो भी कर देगी, right? Everybody knows that dialogue. So yeah, I am that type of person. I have not read books, but I love watching like docu-series. Like YouTube पे I have watched so many series about Steve Jobs या फिर you know all those CEOs, all those big deals. So वो भी easy रहता है. And also in this YouTube profession अभी I don't think Lily Singh या Shane Dawson या इन लोगों के अलावा there have been obviously PewDiePie and a lot of people I know, but उनकी सीरीज वगैरह देखी. एंड यू नो यू हैव टू टेक इंस्पिरेशन. कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंस्पिरेशन ऐसे प्लेट पे रख के मिलती नहीं है. यू हैव टू टेक इंस्पिरेशन. लाइक देयर आर सो मेनी क्रिएटर्स आई सी जो इतना ज्यादा वीडियो डाल रहे हैं या इतना अच्छा वीडियो डाल रहे हैं या इतना कुछ कर रहे हैं, एंड दैट इज एन इंस्पिरेशन. सो इंस्पिरेशन इज ऑल अराउंड यू, ट्रस्ट मी. लाइक पता है बहुत बार ऐसे हुआ है. लाइक आई विल टेल यू वन थिंग. आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस इन माय कॉलेज का सेकंड ईयर, व्हिच वाज ऑलमोस्ट लाइक 5 years from now. तो मेरी क्लास में 60 लोग थे, 33 had a YouTube channel. So that is and I'm not exaggerating. Honestly, I'm not exaggerating. चाहो तो मैं links भेज दूंगा. लेकिन the thing is, so many people are going to do so many things. But अगर if you have some passion, stick to it. Do it and make it possible. Also, I know काफी लोग ये वाला मतलब मुझे DM वगैरह करते हैं. Also, by the way, guys, I'm recording this for my blog also, huh? So there are a lot of people who say कि you know parents allow नहीं कर रहे, ये allow नहीं कर रहे. See, parents are careful. Parents just want you to be secure and safe. So make them understand. मेरे parents ने भी कहा था. पता है मैंने क्या किया था? मेरे आए थे बोर्ड्स में 89.4%. ठीक है, मैंने कह दिया उसी दिन कि मैंने नहीं करना कॉलेज वाले, मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाने हैं. पहले तो छितर पड़े एंड उसके बाद आई वाज टोल्ड कि भाई नहीं कॉलेज जाना है, बिकॉज़ यार दैट्स द फुल प्रूफ प्लान दैट पेरेंट्स हैव फॉर यू, राइट? तो आई हैड टू गो टू कॉलेज, राइट? मैंने 1 साल निकाला वहां पे. सेकंड ईयर में जाके मैंने वीडियोस लिखे हुए थे पहले से, क्योंकि ऑब्वियसली इट वाज माय पैशन, तो मैं काफी 2-3 साल से लिखता आ रहा था. देन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस. डू यू थिंक माय फर्स्ट वीडियो डिड वेल? फॉर 3 years माय वीडियोस वर अ फ्लॉप. 3 साल बाद वाला वीडियो मैं आपको बताता हूँ कौन सा था. मैंने चिल्ड्रंस डे पे एक वीडियो बनाया था. I got 1000 views in a week. 1000 views in a week, guys. Do you think it's like successful? I was earning 120 rupees a month. 120 rupees. जिन जिनको लगता है कि YouTube बहुत पैसा देता है वो आज बबल कर लो, क्योंकि guys it's nothing's easy. कोई कंपनी दुनिया में ऐसे पैसे बांट नहीं रही है. Nobody is distributing money like that. So I was earning 120, 130 ऐसे rupees for like good 3.5 years. Then मेरी जिंदगी में एक देवी जी आई. I'm not talking about my girlfriend. I'm talking about a video का topic
which was Rakhi Sawant and my video on Rakhi Sawant. So people are commenting Rakhi Sawant. Yes, so Rakhi Sawant, that, you know, thank you. जो लोग राखी के वीडियो देखते हैं उन्हें पता होगा कि थैंक यू. So राखी का वीडियो वेंट वायरल. एंड ऑनेस्टली ये भी बता दूं कि वायरल ऐसा नहीं होता कि हो दिन चेक पूजा वाली बात हो गई कि ओ वायरल, फिर उसके ऊपर और वायरल, फिर उसके ऊपर और वायरल. नहीं होता ये. वायरल के बाद एक बहुत तगड़ा डिप आता है. But that gave me a good amount of money and I'm so grateful वो money मैंने कैमरे में ही इन्वेस्ट की and मैंने और प्रोडक्शन वगैरह चीजों में इन्वेस्ट की. ये by the way I'm gonna change this, if you don't like this please let me know. So मैंने चेंज किया and मैंने इन्वेस्ट किया चीजों में and again for good 2-3 months I was not earning good. अब मैं numbers नहीं बता सकता but the thing is it wasn't good, just बस इतना ही ले लो. And उस टाइम पे आई गॉट अ जॉब, और जॉब थी NEC. NEC अगर आप लोगों को पता है एक Fortune 500 कंपनी है एंड इट वाज अ ग्रेट पैकेज एंड इंजीनियरिंग के पैकेजेस सही होते हैं, लाइक 4 to 5 lakhs वाला था. आई क्विट इट एंड उस टाइम पे आई वाज नॉट इवन अर्निंग हाफ ऑफ व्हाट द जॉब वाज गिविंग. एंड आई एम मतलब ऑनेस्टली बाहर बताना मत, किसी को जाके कहीं पे भी मत बताना, बट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ राइट नाउ. आई फील सो हैप्पी दैट आई मेड दैट डिसीजन बिकॉज जितना वो मेरा ईयरली पैकेज था ना वो मेरा बहुत आराम से इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज और मंथ्स कवर हो जाता है. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू नंबर्स, तुम्हें पता है यार, यूट्यूबर से पैसा मत पूछो बस. बट आई कैन टेल यू दिस, लाइफ फाइंड्स अ वे, लाइफ वर्क्स आउट. सो प्लीज चिल and relax and enjoy your life. And also I think it's time for me to go, so I am going to do my rap. So ये बेसिकली मैंने 2 साल पहले लिखा था, तो प्लीज डोंट जज मी. अब मेरे लिरिक्स बहुत अच्छे हो गए हैं. तुम्हें पता है मैंने एक वीडियो में सोन पापड़ी पे गाना बनाया था, ठीक है, दिवाली पे सोन पापड़ी. आई मेड अ सॉन्ग ऑन दैट, सो आई एम गोना सिंग दिस. मैंने उस टाइम पे लिखा था, मुझे बहुत मोटिवेशन मिली थी. मैं अभी भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, बट द थिंग इज आई एम नॉट प्राउड ऑफ द लिरिक्स, so please don't judge me. So here we go. And of course I know a lot of you must know this song. Yeah, so मेहनत करके आया है तू, डिग्री लेकर जाएगा, उठ जा सोना बाद में, तू उठ जा करना काम है, प्रोजेक्ट कर बहाने नहीं वरना बैंड बजवाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा. So I'm gonna take a break इधर तक कि this was giving me inspiration back in the college days, because ट्रस्ट मी उस टाइम पे बहुत जरूरत होती है. उस टाइम पे मूवी चली थी. अब प्लीज कोई nobody is gonna comment nepotism, we are not talking about that here, but I genuinely love this song. This gave me motivation back when I needed it. So उसके बाद this was for me, हाँ, by the way. मेरे जैसा सीधा साधा बच्चा भी बैक लाएगा, ये कॉलेज की टेंशन से मेरा सर चकराएगा, पढ़ने से ज्यादा टाइम तेरा नेटफ्लिक्स ले जाएगा, कोरोना की वजह से साल निकल जाएगा. ये मैंने अभी डाली है, हाँ. नोट्स के साथ यहाँ दोस्त भी बनाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा, आएगा ऑफर लेटर आएगा, जाएगा ज्वाइनिंग पे तू जाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा. आई विश आई हैड अ बीट, मतलब फाड़ देता मैं. So this felt like a fan fest performance to me. Honestly, this was the first performance I've ever done in my life. मतलब अपने कॉलेज में करी है यार, but वो पता है, seeing so many people, वो जो एनर्जी आती है ना, that was a different thing. But right now I can see your energy, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में ही हो. I am getting it and I am loving it. So thank you so much for having me. Last में जाते somebody sing, who sing? एक मिनट, किस ये वाला मेरे को पढ़ना है. हाँ, वंश सिंह मौज कर दी सर बेटे. So yes, okay. So Apurva is saying कि you should add this in the vlog with beat. So I have this on my channel. अगर आप search करोगे शिवम त्रिवेदी, अपना टाइम आएगा, you will get it. I am not proud of it क्योंकि 2 साल पहले बनाया था, but I am pretty happy with what I wrote. And Kashish says wish to have you live in the college sometime. Yes, Kashish, and thank you so much for being such a good host to me, because you coordinated it so well and this went so great, because I feel so great. And there are so many people saying so many good stuff. Thank you so much. मेरे को तो ऐसा लग रहा था, पता है, अभी मैंने स्वाइप अप डाला था स्टोरी पे, मेरे को लगा भाई ये सब तो ठीक है, कोई ऐसा ना आ जाए जो गालियां देने लग जाए टीचर्स के सामने, मुझे embarrassment हो जाएगी. So that did not happen. So everybody is saying good stuff. So thank you so much, everyone. It was really nice to hear. I can hear someone. मैं थोड़ा सा डर गया.
So I hope this was good. I hope I did not say. Hello, sorry. Harshal, please mute that guy. It's okay. We are having a Shweta moment, guys. Shweta bike off that. तुम laughing emoji. Right. So I guess we're done, right? Yes, sir. Shiva, Yes, sir. please don't go. We are having so much of fun with you. I had so much fun. Thank you so much. I was really nervous for this. And if there are any teachers, I'm really sorry. I hope I did not say anything wrong. I'm sorry. It know means you're seeing Wala smile. Please, I'm a big fan of that smile. Okay, thank you so much. I'm not able to hear you properly, but I heard good things. So thank you. And Thank you, sir, for coming. thank you so much Yeah. for having me, first of all. And somebody saying do that ting wala smile, so I know that you watch my videos. So live में मैं add नहीं कर पाऊंगा. If you want to take a screenshot, do it. So those of you who don't know, यहाँ पे मैं ऐसे ting वाली light डाल देता हूँ. And Thank you, भैया. okay, so thank you so much, everybody. I'm seeing So, the sir, you message now. have such a unique style of delivering jokes. It's amazing the endless variety of jokes that you shared, and we really Thank enjoyed you a so lot. And this morning could not be any better. So, yeah, here we present our digital memento to you. Thank you so much. Okay, I am just zooming into it. Wait a sec. Okay, Yes, sir. wow. We'll also Thank you send so it much. to you. Yeah, thank you so much, sir, for accepting our invitation. We are really, really, really honored to have you today with us, and it was super amazing. Literally, it Thank was you super. so much for having me. I had so much fun because बहुत times I wanted to, and I hope we meet someday. Everybody, I hope I get a chance to be at your college maybe sometime soon. And ये COVID वाली सब खत्म हो जाए because I am sick of it and I know you will be too. So let's hope to meet you soon. And यार, you know, ending के लिए एक ही चीज होती है हम लोग के पास. Hope you guys like the video. Like, comment, share, and subscribe. I will see you next time with a new video. Bye bye. Okay, thank you so much, sir. Thank you. Bye bye. Thank you so much, everybody. Bye. Have a nice day. Bye, Have a great Shivam. fest. You guys are working really hard, okay? And stick to that. And bye bye. Thank you, sir. We loved your Bye. Okay, so Neha ma'am is here with us. So, Neha ma'am, can you hear me? Yes, yes. Okay, so yeah, I feel extremely honored to introduce our chief guest, Miss Neha Nagar. She's an entrepreneur as well as the CEO and co-founder of TaxationHelp.in. Thank you so much, ma'am, for accepting our invitation. We are so grateful to have you today with us. Over to you, ma'am. Thank you for inviting me. Let me introduce myself. I'm Neha Nagar. I'm a content creator, business planner, and a tax consultant. I'm creating content on finance and business. It is very important to be a financially literate. TaxationHelp.in is a business that helps youngsters like us to start. When I wanted to start my business, I had no clue how to do it, how to arrange funds, how to plan it, and how to hire team. So there I saw a gap that I'm trying to fill now by providing consultation and information to youngsters on business planning. And there may be many reasons why you want to start your business. My reason was I wanted to generate a second source of income. So your reason can be you hate your job or you see a lot of opportunities in India. वो अलग बात है कि हमारा जीडीपी और इन्फ्लेशन कहीं और जा रहा है. बट अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं बट हमें क्लू नहीं होता है कि हम कैसे करें. और एक्चुअली में गूगल पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है हर चीज के रिगार्डिंग, वेदर इट इज बिजनेस आइडिया और कुछ भी है कि टीम कैसे हायर करे या फंडिंग कैसे अरेंज करे. बट उस सारी इन्फॉर्मेशन को एक प्लेस पर लेके आना वो मेरा एम था. और मैं ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्टार्टअप्स को कंसल्टेशन प्रोवाइड कर चुकी हूँ सॉरी. एंड अपने बिजनेस में बहुत सारे क्लाइंट्स ऐड हो चुके हैं. और अभी वो पॉइंट आ गया कि जहां पर हम जब कोई क्लाइंट ले रहे हैं तो हम थोड़ा सोच रहे हैं, उनका इंटरव्यू वगैरह लेकर फिर हम उन्हें ले रहे हैं. तो अगर मैं अपना बताऊं कि मैंने कैसे स्टार्ट किया है,
तो मैंने डीपीएस से अपने स्कूलिंग की है। उसके बाद उस टाइम पर मुझे कोई क्लू नहीं था कि क्या करना है, बट हमारे यहाँ पर एक गेस्ट आए थे स्पीकर, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहे थे। तो उस वक्त मुझे आइडिया भी नहीं था कि मुझे क्या करना है। तो उनका जो स्पीच था उससे मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी और मुझे लगा था कि मुझे यही करना है। बट एक्चुअली मैंने सोचा कि मुझे सीए करना है, तो आई परस्यूड सीए। उसमें 2 लेवल के बाद मेरा नहीं क्लियर हुआ था। एंड बट एक्चुअली में मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मुझे सीए नहीं बनना था, मुझे स्पीकर बनना था। तो जो मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स नहीं क्लियर हुआ था 2 लेवल के बाद, तो मैंने फिर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मैंने 3 साल का पूरा टैक्सेशन का नॉलेज वगैरह ले लिया था, सब कुछ पढ़ लिया था, तो मुझे पता था कि मुझे चीजें आती तो है बट एग्जाम्स किसी तरीके से क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो आई थॉट कि अब इस पे और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे पहले बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर, बट जब एग्जाम क्लियर नहीं हुए तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ही लो होने लगा था। लो सेल्फ स्टीम जिसे बोलते हैं, वो वाला स्टेज आ गया था। फिर मुझे लगा कि मुझे अब ऐसा नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि नहीं, अब मैं एग्जाम नहीं देती हूँ। मैंने 2-3 बार वो वाला एग्जाम दिया था जो मेरा अटका हुआ था। एंड फिर मैंने कहा कि नहीं, अब नहीं, अब मैं अपना टाइम, या कहते हैं ना कि गिव अप मत करो, बट मैंने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे गिव अप कर दिया था, क्योंकि मुझे उस वक्त कुछ और चीजें चाहिए थी। क्योंकि मैं सोचती थी कि मैं यंग हूँ, मेरे अंदर अभी ज्यादा पैशन है, अगर मैं अभी भी इसको ऐसे ही डालती रहूंगी तो शायद मैं फिर कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो फिर मैंने उस वक्त फिर मुझे ये भी आइडिया नहीं था कि इसके अलावा मैं क्या करूँ। तो मैंने की बहुत सारी जॉब्स, इंटर्नशिप वगैरह, ताकि मैं थोड़ा सा देख पाऊँ कि कौन सी इंडस्ट्री मेरे लिए बेटर रहेगी और मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने टाटा टेलीकम्युनिकेशन में भी जॉब की थी, पॉलिसी बाजार में इंटर्नशिप में जॉब की थी। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह मैंने 1-1, 2-2 महीने जॉब की थी, ताकि मैं देख पाऊँ कि एक्चुअली में क्या चल रहा है। एंड जो सबसे ज्यादा मैंने टाइम में जॉब की थी वो टाटा में थी, टेलीकम्युनिकेशन में। तो वहां पर भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले थे, मेरे जो मेंटोर थे, या जो कह लो कि मेरे जो लीडर्स वगैरह थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया था। तो वहां पर मेरे सर थे, दीप सर, उन्होंने मुझे बताया कि व्हाई डोंट यू डू एमबीए, वहां पर तुम्हें और ज्यादा चीजें पता चलेगी और तुम्हें क्लियर आउट हो जाएगा कि तुम्हें करना क्या है। और एमबीए में मैंने जाना, जब ई सेल एमबीए में जब मैं गई थी ना, तो मैंने सब कुछ ज्वाइन कर लिया था। मैंने ई सेल भी ज्वाइन किया, थिएटर भी ज्वाइन किया, और जितने भी हमारे ग्रुप्स वगैरह होते थे सारे ज्वाइन किए मैंने। और मैं ट्राई करती थी कि मैं सारे थ्रू ही इंफॉर्मेशन ले सकूं, एक्सप्लोर कर सकूं। टीचर से मैं बात करने लगी बहुत ज्यादा। और तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, जब मुझे लगा कि अब मैंने एमबीए में फीस फूक ही दी है, जबकि मेरी फीस ज्यादा नहीं थी, मैंने आईपी से किया है, बट स्टिल मेरे लिए वो लग रहा था कि मैं ऑलरेडी फेल हो चुकी हूँ, तो मैं पापा का पैसा और ज्यादा बर्बाद क्यों करूँ। इसलिए आई थॉट कि आईपीसी से करते हैं और उसको ज्यादा यूटिलाइज करते हैं। सो दैट्स हाउ वहां पर भी मुझे 1-2 टीचर्स काफी अच्छे मिले, जिन्होंने मेरे को बहुत सारी चीजें क्लियर की। जैसे कि हमारे ई सेल में जो टीचर होते हैं, आई थिंक वो सभी कॉलेजेस में है, कि वो बहुत ही अच्छे सपोर्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा गाइड करते हैं, राइट। तो ई सेल में भी हमने 1-2 प्रोजेक्ट किए थे सर के साथ, एंड सर ने बताया कि ऐसे ऐसे चीजें हो सकती है। हमारे गेस्ट स्पीकर्स आते थे, तो हम वहां से चीजें सीखते गए। फिर मेरी प्लेसमेंट का टाइम आ गया था, तो हमारे यहाँ पर एक कंपनी आई थी, और हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि हमारे यहाँ ज्यादा कंपनी आएगी। तो वो जिस दिन वो कंपनी आई थी, उस दिन हम कॉलेज में बैठे हुए थे, तो आई थॉट कि मैं दे देती हूँ इंटरव्यू। मैंने वो इंटरव्यू दिया। वो कंपनी थी आईएफएल सिक्योरिटी, स्टॉक मार्केट में थी। उस वक्त मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था स्टॉक मार्केट में, तो मैं वो इंटरव्यू देने चली गई, एंड वो इंटरव्यू क्लियर हो गया था। मतलब 2 महीने बाद, 2 हफ्ते बाद पता लगा था कि वो क्लियर हो चुका है। हम 30-40 बच्चों ने दिया था, जिसमें से 3 बच्चों का हुआ था। तो मैंने पूछा बाकी 2 से कि तुम लोग ज्वाइन कर रहे हो। तो वो ही पहले तो मना करते हैं, बट एंड में मुझे वहां पे दिखे थे, जो वो फाइनल वाला एचआर से डिस्कशन होता है। तो हम तीनों ने ज्वाइन कर लिया था वो ऑफिस। फिर वहां पे स्टॉक मार्केट का एक्चुअली में कुछ पता भी नहीं था, थोड़ा बहुत पढ़ा था इंटरव्यू के लिए 1 घंटे पहले कि क्या होता है, कैसे होता है। तो वो पढ़ के हम चले गए, फिर एचआर से डिस्कशन वगैरह हुए, फिर ज्वाइनिंग लेटर आ गया था हमारा। फिर वहां पर मैंने, जो हमारे बॉस थे वो बहुत ही सपोर्टिव थे, वो बोलते थे ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये करो, वो करो। और मतलब फर्स्ट मंथ होता है, वो बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते थे कि ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, ये चीज पता होनी चाहिए। ये 2008 में ये हुआ था, 1991 में ये हुआ था, ये बहुत सारी चीजें पढ़ने को वो बोलते थे, जो हमने नहीं पढ़ी थी स्टॉक मार्केट के बारे में। तो वहां से मुझे इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, म्यूचुअल फंड्स हो, एआईएफ हो, पीएमएस हो, इन सब के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो मैंने वहां पर 1 साल काम किया था, बट जब 1
1 साल कंप्लीट होने वाला था, तो काफी लोग थे जो मेरे साथ के थे, वो छोड़ के जा रहे थे। तो उनमें से कुछ जो मेरा ग्रुप था, उनमें से काफी लोग थे जो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, और वो भी इन्वेस्टमेंट में। बट वो लोग एक्सपीरियंस थे, उनके 6 या 7 साल का एक्सपीरियंस था उनका। तो वो इन्वेस्टमेंट में कर रहे थे, और मेरा तो 1 साल का ही है। तो मुझे लगा कि मेरे को भी कुछ करना है यार, बिजनेस करते हैं, कब तक यहाँ पर रहेंगे। जबकि पैकेज भी अच्छा था, और जो एक्स्ट्रा अर्न होता है वो भी अच्छा अर्न हो रहा था, इंसेंटिव। बट क्लू नहीं था कि क्या करे, कैसे करे। मैंने कहा कि मुझे स्टॉक मार्केट में तो इतनी नॉलेज है नहीं जितना ये है कि अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी खोल रहे हैं जाके। एंड मैंने देखा कि वो कर चुके ऑलरेडी, 1 महीने बाद देखा कि उनका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो आई थॉट कि बिजनेस तो यार मेरे को भी करना है, और इन्वेस्टमेंट में तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मैं किस में करूं। तो उस वक्त जब मैंने फेब या मार्च के आसपास अपनी जॉब का रेजिग्नेशन दिया, तो उस वक्त फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने लग गई कि क्या मुझे, क्योंकि मुझे इतना तो श्योर था कि मैं 1 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे कहीं और अप्लाई करूंगी, तो मुझे इससे बेटर पैकेज शायद नहीं मिलेगा, और कोई फायदा नहीं है कि मैं 1 साल का एक्सपीरियंस लूं और फिर दूसरी जॉब चेंज कर दूं। तो मुझे इतना तो श्योर था कि अगर मैं जॉब छोड़ रही हूँ तो फिर बिजनेस तो करना ही पड़ेगा। अब ये नहीं था कि कैसा बिजनेस करना है। तो फिर मैंने फिर उन लोगों से बात की कि मैं भी रिजाइन दे रही हूँ, और वो कह रहे पागल है कि तू हमारे पीछे क्यों आ रही है। तो हमारा तो प्लान है ये वो, हम 6 साल से एक्सपीरियंस है इन्वेस्टमेंट्स में, ये वो। मैंने कहा नहीं यार, मेरे को भी करना है। अगर मैं यहाँ फंस गई ना, तो शायद मैं नेक्स्ट ईयर फिर सोचूंगी यार कि इंक्रीमेंट मिलने वाला है, अब नहीं छोड़ती, फिर मेरी शादी हो जाएगी, फिर सोचूंगी कि अगर मैंने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे छोड़ दिया, तो फिर मेरे कहीं ऐसा ना हो कि इन लॉज बोल दे कि जॉब छोड़ ही दिए तो अब दोबारा क्यों करनी है। तो मुझे काफी सारी चीजें दिखने लगी थी आगे कि ऐसे करूंगी तो अभी करना पड़ेगा जो भी करना पड़ेगा। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फिर मैंने बहुत सारी चीजें देखी कि ई कॉमर्स कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, यूट्यूबर बन सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस मैंने देखे थे। मैन्युफैक्चरिंग के में भी जैसे सैनिटरी पैड का मैंने एक ऑप्शन देखा था, जिसके बारे में मैंने काफी टाइम तक रिसर्च की थी, और वो आइडिया तो मेरे दिमाग में अभी भी है। बट उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, करीब 25-30 लाख की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और अगर मैं अपना खुद का बताऊं तो मेरे पास जो मैंने जॉब से अर्न किया था उसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। एंड देन फिर मैं एक गुजर कम्युनिटी से भी थी, तो मुझे पता था कि मैंने जैसे ही जॉब छोड़ी और वैसे ही मेरी शादी की बातें होने लग जाएगी। तो वहां पर मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि अब मुझे करना क्या है। जॉब का रेजिग्नेशन तो मैंने दे दिया है। उसके बाद मैंने कहा कि यार जब मैंने 3 साल टेक्स में पढ़ाई करी है, तो क्यों ना उसी के रिगार्डिंग हम कुछ शुरू करते हैं। तो वहां से मैंने टैक्सेशन है तो स्टार्ट कर दिया था, बट इसमें करना क्या है वो नहीं पता था। ये पता था टैक्स कंसल्टेंट की सर्विसेज देनी है, जीएसटी, आरटीआर, कंपनी रजिस्ट्रेशन, जो भी चीजें होती है वो सारी। बट वो सब ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे थे, तो मुझे क्या डिफरेंट करना है ये मुझे अभी तक नहीं पता लगा था। तो जब मुझे खुद पता नहीं चल रहा था कि कैसे करना है, क्या करना है, अगर स्टार्टअप करना है तो कैसे करना है, तो वहां से मुझे थोड़ा सा क्लू आया कि क्यों ना मैं सिर्फ कंसल्टेशन प्रोवाइड करूँ, गाइडेंस प्रोवाइड करूँ, और ये जो रिसर्च मैं अपने लिए कर रही हूँ वो दूसरों के लिए करके भी देने लग जाऊं। तो इस तरीके से हमने अपना टैक्सेशन हेल्प को थोड़ा सा फिर और ज्यादा बड़ा किया। हमने टैक्स सर्विसेज के साथ साथ स्टार्टअप सर्विसेज देना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे वेंडर्स के साथ टाई अप किए। जैसे कि अगर आपको अपने स्टार्टअप को स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर कराना है, तो उसके लिए भी हम रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इसके अलावा बहुत सारे स्कीम्स और है, सरकार के है और प्राइवेट इन्वेस्टर्स के, एंजल इन्वेस्टर्स के है। जैसे कि आपको सबको पता है YCY कॉम्बिनेटर, आपको पता होगा सेक्वा सर्च के बारे में। तो हमने सबके साथ किसी ना किसी तरीके से टाई अप कह लो या फिर पार्टनरशिप, जो भी कहना है वो कह लो, उन सबके साथ हम जुड़ चुके हैं धीरे 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 धीरे। ताकि अगर मेरे पास कोई आ रहा है यंगस्टर किसी चीज के बारे में पता करने या पूछने, तो इंस्टेड ऑफ मैं कि सिर्फ नॉलेज दे दूं, मैं उसे कोई नंबर ही प्रोवाइड कर दूं कि आप इस साइट पे चले जाओ या इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, ये आपको इस रिगार्डिंग में मदद कर देंगे। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीजें प्लान की है। और मैं बताऊं, मैंने 2019 में स्टार्ट किया था ये सारी चीजें, जो मेरा बिजनेस है, और अब 2021 है, तो मई में मेरे को 2 साल हो जाएंगे। और फर्स्ट ईयर मैं स्टार्टिंग का बताऊं तो जब मैंने हायर किया था, स्टाफ हायर किया था मैंने, और रेंट पे ऑफिस लिया था, तो स्टार्टिंग में मेरा बिजनेस इतना अच्छा नहीं चला था। हमने फिर डिजिटल चीजों का मदद लिया था, जैसे गूगल मैप है। गूगल मैप बहुत अच्छी चीज है, अगर आप अपने बिजनेस को लिस्ट करते हैं तो वहां से आपको बहुत ही ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलता है, और विदाउट पेइंग आपको काफी अच्छे क्लाइंट्स वहां से मिल जाते हैं। तो मुझे पहले जो कुछ क्लाइंट्स मिले थे वो गूगल मैप के थ्रू ही मिले थे, फिर तो रेफरेंस के बेसिस पर ये चेन बनने लग जाती है।
और उसके अलावा हमने अपनी वेबसाइट भी बना ली थी। तो वेबसाइट पे भी मैं कहूंगी वेबसाइट से शायद इतना ट्रैफिक नहीं आता, बट वेबसाइट से क्या होता है कि एक प्रोफाइल बिल्ड हो जाती है, और अगर कोई कहीं और से आ रहा है, रेफरेंस से आ रहा है या गूगल मैप से आ रहा है, तो अगर वो आपकी वेबसाइट विजिट करता है तो वो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, और वो फिर ज्यादा कन्वर्जन का रेशियो हाई हो जाता है। इसलिए हमने वेबसाइट भी रेडी रखी थी अपनी। अब थोड़ा थोड़ा बिजनेस आने लगा था मेरा, और स्टाफ भी मैंने हायर कर लिया, ऑफिस भी ले लिया। देन मई से फिर ये फैब में आई थिंक ये लॉकडाउन, मार्च में ये लॉकडाउन होने लगा था। तो उस वक्त जब मेरा बिजनेस थोड़ा सा पिकअप करने ही लगा था तब लॉकडाउन हो गया था। तो उस वक्त बहुत टेंशन वाली बात हो गई थी, क्योंकि रेंट कोई माफ नहीं कर रहा था और स्टाफ की सैलरी भी देनी थी। और स्टार्टिंग में जो मैंने ऑफिस से अपने जॉब से अर्न किया था वो मैं ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी थी। तो उस वक्त फिर मुझे सोशल मीडिया दिखा कि क्यों ना मैं अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पर लेकर आऊं, क्यों ना जो मैंने पढ़ा है या जो मैंने जॉब्स में एक्सपीरियंस किया है वो मैं यंगस्टर्स के सामने लेके आऊं। तो 10 साल मैंने स्मॉल वीडियोस बनानी स्टार्ट की थी टिकटॉक पे। मई के अराउंड मैंने 13 मई या 14 मई को पहली वीडियो डाली थी, और वो पहली या दूसरी वीडियो ही वायरल चली गई थी जिसमें मिलियन व्यूज आए थे। तो फिर वहां पर मुझे और ज्यादा चीजें दिखी कि अच्छा ये भी हो सकता है, अच्छा ये भी हो सकता है, जैसे कि अब हमने इन्वेस्टमेंट भी ऐड कर लिया अपने बिजनेस में। तो धीरे धीरे हम सारी चीजें ऐड करते जा रहे हैं। बट ये सब मैं क्यों कर पाई, क्योंकि मैं एक्सप्लोर करती थी, क्योंकि मैं सीखती थी ज्यादा चीजें, और मुझे ये था कि मैं ये भी जान लूं, ये भी जान लूं, ये भी जान लूं, ये भी जान लूं, मुझे ये भी आना चाहिए। और मैं शायद इंक्लूड करना भूल गई कि मैंने एमबीए के टाइम पे मॉडलिंग और एक्टिंग भी की थी। आप मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, जी म्यूजिक की एल्बम भी की हुई है मैंने। और Z5 जो कि एक ओटीटी है, उसके लिए क्राइम सीरीज भी की थी जिसमें मेरी बहन का रोल था और कोई रोल नहीं था। और इसके अलावा मैरी कॉम के साथ मैंने एक टीवी एड भी की थी। एंड मैंने काफी सारे प्रोजेक्ट किए थे एक्चुअली एमबीए के टाइम पर। अभी मुझे याद नहीं है, प्रिंट शूट्स भी किए थे मैंने, मिस फेस ऑफ एनसीआर 2017 भी मैं जीती थी। एंड बहुत सारी चीजें मैं करती थी उस वक्त, क्योंकि मुझे था कि अच्छा मेरे माइंड में ये भी था ना कि मेरी एमबीए होगी, मेरी फैमिली मेरी शादी कर देगी। तो इसीलिए मेरे अंदर ना वो चुल सी थी कि मुझे ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, जल्दी कर लेती हूँ कहीं मेरी लाइफ खत्म ना हो जाए। तो मेरे अंदर वो चुल थी कि मुझे करना है यार, अगर मुझे जॉब बिजनेस करना है तो अभी करना है, इसके बाद तो बिजनेस नहीं हो पाएगा यार। इन लॉज बोल देंगे कि अब क्या जरूरत है, जॉब चल रही है जॉब करते जाओ, अगर मैंने जॉब छोड़ी तो बोलेंगे कि घर पे हो तो घर पे ही रहो। तो वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली लड़कियों के लिए, इवन लड़कों के लिए भी यार सेम ही चीजें होती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है लड़कों में भी, क्योंकि मेरी फैमिली में भी लड़के हैं और उनके साथ भी वही सिचुएशन है जो मेरे साथ हुआ करती थी। तो तो चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, उनको पता, हम सबको पता है कि हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद हमारी फैमिली पीछे पड़ जाती है, शादी 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 शादी। तो एक ये भी प्रेशर रहता है अपने लिए कि यार शादी से पहले अपनी तो कुछ पहचान बनानी है, कभी फिर ऐसा ना हो कि उन्हीं के नाम से हम जाने जाने लगे। तो मेरे मोटिवेशन का रीजन ये भी था। तो इस तरीके से फिर मैंने ये मॉडलिंग, एक्टिंग, बिजनेस, और मैंने जॉब्स की थी टाटा टेलीकॉम कम्युनिकेशन पॉलिसी बता। बट मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने जो एक्सप्लोर की थी चीजें, तभी मैं ये सारी इंफॉर्मेशन लेकर आई, ले पाई, और तभी मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया है। शायद मैं एक इतनी अच्छी स्पीकर नहीं हूँ, शायद मैं कई सारे इवेंट पे जाती हूँ, तो शायद मुझे लगता है कभी कभी कि मेरी स्पीच अच्छी नहीं गई है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं स्पीकर भले ही अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक एक्सप्लोरर हूँ, मैं चीजें करती रहती हूँ। अभी जब मैंने डीयू का ही कॉलेज था, वो उसमें मैंने पहला अपना वो दिया था सेशन, 2-3 महीने की पहले की बात है ये। तो वो मेरा बहुत ही बुरा गया था, बहुत ही बुरा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं अपनी स्टोरी को कैसे स्टेप बाय स्टेप बताऊं, और कैसे फिर अपने बिजनेस प्लानिंग के बारे में बताऊं। तो उसके बाद फिर मुझे लगा था थोड़ा सा कि यार मैं ना ऐसा करती हूँ कि कॉलेजेस के ये इंटरव्यूज वगैरह नहीं लेती हूँ, क्योंकि ड्यू का बताऊं ना, ड्यू का ऑलमोस्ट सभी कॉलेज का मेरे पास आ चुका है। आज शाम को 6 बजे भी है, कल सुबह भी है। तो मार्च का पहला वीक तो ड्यू ने ही मेरा बुक किया हुआ है। तो वो ड्यू का ही था जो मेरा पहला बेकार गया था। तो मेरे को बहुत शर्म सी आई थी कि यार मैं इतना बुरा कैसे बोल सकती हूँ। तो फिर उसके बाद मेरे पास 2 कॉलेज के आए इवेंट के, वो जज था, मैंने कहा चलो इसमें बोलना नहीं है, सिर्फ जज बनना है, इसमें चल लेते हैं। फिर उसमें मैं गई और उसमें जज बनी थी मैं। एक फोर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट था, और एक डीयू का एक और कॉलेज था, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे नाम, ड्यू के बहुत सारे कंफ्यूजन हो गए कॉलेजेस में। तो फोर्थ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का जो मेरा जज का सेशन था, उसमें था बिजनेस प्लानिंग का, कि बच्चे अपना बिजनेस प्लान वो शो कर रहे थे।
तो उसमें मुझे क्वेश्चंस पूछने थे, अपने बारे में नहीं बात करनी थी, तो मेरा बहुत अच्छा गया था क्योंकि ऑब्वियसली जिसमें मैं हूँ उसमें तो मैं अच्छी हूँ ना। तो उसमें मैंने बहुत सारे मतलब इंटरेक्शन किया बच्चों से। 6 टीम थी वहां पर और वो लंबा भी था यार, 2-3 घंटे का सेशन था वो। तो उस वो सेशन मेरा काफी अच्छा गया था। मैं उस सेशन के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील कर रही थी और मुझे ये भी पता लग गया था उस सेशन के बाद कि बच्चे एक्चुअली में बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड है और बच्चे एक्चुअली में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। एक था डोर नाम का उनका स्टार्टअप था, वो ऑलरेडी वो स्टार्ट कर चुके थे और ऑलरेडी वो 2 साल से रेवेन्यू भी कमा रहे थे ई सेल के थ्रू। एक था उनका एयर प्योरीफायर का था, वो एयर प्योरीफायर का प्राइस 1500 1800 उन्होंने रखा हुआ था और दिल्ली में उन्होंने काफी जगह वो बेच चुके थे। तो काफी अच्छे अच्छे आइडियाज थे और ऐसा नहीं है कि यंगस्टर्स सिर्फ फंडिंग के लिए रुके हुए हैं। जनरली जो मेरे बाकी क्राउड है, मैं कहूँ यूट्यूब से, इंस्टा से या टिकटॉक से या बाकी जितने प्लेटफॉर्म से, वो क्या होता है, उनमें क्या होता है यंगस्टर्स में कि बस फंडिंग मिल जाए और फिर आग लगा देंगे। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, फंडिंग सिर्फ एक पार्ट होता है, उससे पहले बहुत सारी चीजें होती है। तो उस सेशन में मुझे एक्चुअली पता लगा कि एक्चुअली ऐसा नहीं है कि सारे लोग फंडिंग के लिए घूम रहे हैं, कुछ लोग कर भी देते हैं खुद से टीम बना के, लोगों को सपोर्ट अप्रोच करके, और उनमें से काफी सारे फंडिंग पे अटके भी हुए थे। बट इट वाज मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो वहां से मुझे और कॉन्फिडेंस आया। फिर मैंने कहा कि मैं तो अब सारे सेमिनार या वेबिनार जो भी मेरे पास आ रहे होंगे, मैं उन्हें अप्रूव करने वाली हूँ अगर वो हमारे अच्छे कॉलेजेस के होंगे तो इस तरीके से मैं फेल हुई और मैंने फिर सीखा। और मेरा जो रीजन है, कुछ भी कह लो, वो सिर्फ एक्सप्लोर करने का ही रीजन था। तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत ज्यादा अचीव नहीं किया है, बट मैं बहुत खुश हूँ। सिर्फ 2 महीने में हमने इतनी अच्छी ग्रोथ दिखाई है और वाई कॉम के साथ भी हमारी कुछ बात चल रही है। तो लेट्स सी। अच्छा, मैं ये बता दूं कि रितेश मलिक जो कि इनोवेट के फाउंडर है, उनके साथ हमारा सेशन है 6 ऑफ मार्च को शाम को 5 बजे। तो आप सारे जरूर ज्वाइन कीजिएगा स्टार्टअप्स के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। और वहां पर भी हम बहुत सारी एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के बारे में बहुत सारी बात करने वाले हैं, तो वाला सेशन मिस मत कीजिएगा। और आपके अब जितने भी क्वेश्चन है मैं रेडी टू आंसर हूँ। मैंने थोड़ी बहुत अपनी स्टोरी बता दी है, अपने बिजनेस के बारे में बता दिया है। आप मेरा बिजनेस विजिट कर सकते हैं और आप क्वेश्चंस के लिए मैं रेडी हूँ। अगर आप अपना कैमरा ऑन करके कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आई एम हैप्पी टू आंसर। यस, एनी क्वेश्चंस? Hello. Hi. Hi. Can you hear me? हाँ जी। Yeah. Yeah. Yes, So, yes. hi. Can you see me? Okay. So, your story really made my day. So thanks for that, first of all. And my question is like, what is your main focus right now when it comes to growing taxation help? We are turning ourselves into startup oriented only. Earlier we were only tax consultant or digital marketing services, web development services, but now we are trying to redevelop ourselves into startups only. That's why we are we are collaborating with many entrepreneurs or many companies or many businesses which are into startups. So yes, we are moving to startup oriented only. Got it. And I heard you said you were facing the problem of hiring a team, right? And right. So I've been into doing this for like 2 to 3 years, and I can recommend a book for you when it comes to hiring a team. You should read How Google Works by Eric Schmidt, right? So that's a really good book, and because Google actually used that book to hire the first to get their first few hires. They were like really excruciating. They had a really excruciating hiring process, and it's all in that book. And some of the concepts in that book, the best companies of today use it, right? So yeah, that's what I wanted to say. Okay, and thanks for your story. It was really helpful. Okay, thank you. थैंक यू फॉर सजेशंस। ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि हाँ, टीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और स्टार्टिंग में जो टीम रहते हैं हमारे 5-10 लोग, आपने बहुत सुना होगा अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, तो बोला जाता है कि जो स्टार्टिंग के हमारे 5 लोग होते हैं वही हमारी कंपनी होते हैं। उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कंपनी चलने वाली है नहीं चलने वाली है।
तो स्टार्टिंग में मैंने जो हायर किया था वो तो अननोन लोग थे जो इंटरव्यूज के थ्रू थे, बट फिर धीरे धीरे मुझे पता लगा कि शायद वो लोग इतना इनपुट नहीं दे पाएंगे जितना मेरे खुद के लोग हैं। तो धीरे धीरे मैंने अपने भाई को, जो कि उस वक्त 12th में ही था, तो उसको भी खींचा कि यार तेरे को साइबर सिक्योरिटी थोड़ी बहुत आती है, तेरे को जो भी उसको साइबर सिक्योरिटी है या वेब डेवलपमेंट का बहुत ज्यादा शौक है, तो मैंने कहा थोड़ी बहुत भी आती है तो कर इसको, मैं तेरे लिए एक स्टाफ ऊपर से रख दूंगी, वो तेरी बातें सुनेगा। तो मैंने धीरे धीरे उसको इंक्लूड किया इस चीजों में। तो इसकी वजह से हम 2 लोग तो ऐसे हो गए कि हाँ, जो एक्चुअली में चाहते हैं कि हमारा बिजनेस अच्छा चले। उसके बाद जो हमने हायर किए है वो भी अननोन तो कम्प्लीटली नहीं है, बट उनको पता है हमारा विजन क्या है और वो काफी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। बट ये भी बहुत डिफिकल्ट चीज होती है मैनेज करना एम्प्लॉयज को या स्टाफ को। Any more questions? Ma'am, I don't think so that there are any more questions. Okay. Ritik is asking one question. Ritik, go ahead. Ma'am, basically, Okay, he's asking. basically, I wanted to ask, ma'am, if I'm working somewhere, ma'am, and I also wanted to start something, what factors should I consider so that I can leave my job? You shouldn't leave your job before having 6 months of your income as your emergency or opportunity fund, right? You must have in your savings 6 months of your monthly income, right? If you have that, then you can think that yes, I can leave it. But then also the second point is that whatever you're planning to start it with your business. If you can do it with your business, then you should do it. Otherwise, it is of no use. So have your savings and have your plan ready and work on that plan and meet some person or meet some your co-founder or have some team in your business, then start your business, then you can leave your job. So before hiring staff or before having co-founder, before having a team, before having some amount in backup, you shouldn't leave your job. And ma'am, the Yes. next best question is how to deal with the family pressure. How to convince them. एक्चुअली में क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो सीधा ना आता है, ना ना नहीं नहीं सुनते ही नहीं है, उठ के चले जाएंगे, है ना। तो स्टार्टअप ये स्टार्टिंग कौन सी में चिड़िया तो है? ये चीजें होती है। हाँ Yes, that's स्टार्टअप true. ये कौन सी चिड़िया है? हाँ, ये क्या है? तू पागल हो गई है? ये क्या है? चुपचाप जॉब करो। तो स्टार्टिंग में 1-1.5 महीना चला था, ये चलता है 1-1.5 महीना, स्पेशली जब आप लड़की हो और वो सोच रहे हो शादी करनी है। फिर शादी कैसे होगी अगर बोलेंगे कि बिजनेस कर रही है तो, है ना। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़कों के साथ भी यही चीज है कि स्टेबल रहेंगे, इनकम आएंगे तो बता तो देंगे कि इतनी इनकम कमा रहे हैं, या हमारे पड़ोसी पूछेंगे तो बता तो देंगे क्या ये स्टार्टअप सुनते ही नहीं है, उठ के चले जाएंगे। बोलते तो फिक्स तो है कम से कम। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप कंसिस्टेंटली ही उनको मनाते रहे, हंस के आराम से, गुस्सा ना करे आप, और थोड़ी टोन अपनी वो वाली हैवी वाली ना करे जो एक्चुअली में हम अपने पेरेंट्स के सामने कर देते हैं, तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता है अगर आप कंसिस्टेंटली अपनी बात पर टिके रहे और थोड़े से रिजल्ट दिखा दे। मैं तो कहूंगी कि प्लानिंग के बेसिस पर ना तो आपको फंडिंग मिलेगी, ना ही आपको अपने पेरेंट्स का अप्रूवल मिलेगा, राइट। तो थोड़ी बहुत तो आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, या तो एक प्लान रेडी करो या एक सैंपल का प्रोडक्ट रेडी करो, या अपने साथ 2-3 लोगों की टीम बनाओ कि हाँ हम सारे इसमें इन्वॉल्व है, या किसी मेंटोर को हायर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मेंटोरशिप भी देते हैं। आपके ई सेल में मेंटोर होते हैं आपके, उनको आप जाकर अप्रोच कर सकते हो। तो जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ना, तो उनके अंदर खुद से ही वो कहने लग जाएंगे कि ठीक है चल कर ले, देख लेते हैं तेरा ये भी, जब इतनी सारी चीजें देखी है तो इतना डिफिकल्ट एक्चुअली में नहीं होता है। वो हमारे ऊपर होता है कि हम अपने काम के साथ और अपने प्लान्स के साथ कैसे उनको अप्रोच करते हैं। उनको भी एक तरीके से आप इन्वेस्टर ही मानो ना, जैसे आप इन्वेस्टर को अप्रोच करोगे, वो आपका 1.5-2 घंटे का इंटरव्यू लेता है, तो वो बहुत सारी चीजें पूछती है, ये हुआ तो वो कैसे होगा, ये कैसे करोगे, ये वो। तो इस तरीके से ये पहला आपका इंटरव्यू है। जब आप अपने पेरेंट्स को अप्रोच करोगे तो ये समझो कि ये आपका पहला इन्वेस्टर्स का इंटरव्यू है। जिस तरीके से आप वाईसी हो या फिर सेक्वा सर्च हो या किसी भी और किसी प्लेटफॉर्म के लिए रेडी होगे इंटरव्यू के लिए, तो उसी तरीके से अपने फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए रेडी होके जाओ पूरे प्रॉपर प्लान के साथ, और एक सैंपल प्रोडक्ट या एक टीम जरूर हायर करें।
और ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में अगर आप सैंपल प्रोडक्ट बना रहे हो या टीम हायर कर रहे हो तो स्टार्टिंग से ही आपको पेमेंट मांगने लग जाएगी, ये पहले से ही खर्चा होता है। तो थोड़ी बहुत सेविंग का यूज करके आप सैंपल प्रोडक्ट बना लो, सर्विसेज बना लो, और टीम तो आपको अपने आसपास ही ढूंढनी पड़ेगी। जो अच्छी टीम होती है वो जनरली यही होती है कि या तो अपने बेस्ट फ्रेंड को या अपने कजन्स को इसमें इन्वॉल्व करो, क्योंकि स्टार्टिंग में जो होता है कि बहुत खतरा भी रहता है कि हमारी कुछ टाइम बाद इनकम आएगी कि नहीं आएगी। और अगर अगर आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर आपका भले ही बिजनेस आइडिया अच्छा चल रहा हो, फिर आपस की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से दिक्कतें आ सकती है। तो आई वुड से कि पहले जो चीज होती है वो होती है कि अपने एक या दो तीन लोग तो अपने साथ जोड़ के रखो स्टार्टिंग से ही। यस Okay. Yeah, that was a great advice. So thanks जी, for that. In fact, a ओके, key थैंक यू takeaway, गाइस। Nema. Yeah. I'd like to say that I also faced this problem back when I was starting out. So the solution to that is just like show them the results, right? So when someone sees that the output, the input that you're giving to your thing, and it is having a positive output, then like the parents stop. Because मेरे साथ भी पहले ये होता था कि mom dad used to say कि यार ये क्या कर रहा है, you should go to you should attend your classes more, you should study more. But once it was for like two to 3 months. Okay, and after that I realized कि it's more of a mental issue. It's like in me also. तो फिर उसमें ऐसा था कि after that once I landed my first client, it was sorted. Like mom dad was like chill. So yeah, it was that. यस, एफर्ट्स दिखते हैं ना, अगर उनको एफर्ट्स और कंसिस्टेंसी दिखेगी तो बहुत ही कम केसेस में होगा कि आपको आपके पेरेंट्स रोकेंगे। उनको बस थोड़ी Very true. सिक्योरिटी का रहता है कि सिक्योर सिक्योर चीजें करो, सेफ रहो। बट Yes, very अगेन true. वो भी चीजें देख रहे अपने आसपास, वो भी टीवी न्यूज दे, तो उनका कि एक्चुअली स्टार्टअप होता क्या है और क्या रिस्क तो इन्वॉल्व है ही। तो थोड़े से हाँ करने के लिए रेडी है, बट उन्हें ये होता है थोड़ा तो और मनाओ उन्हें। तो हाँ, तो मनते रहिए, मान जाएंगे। Yes. Yes, very true. On behalf Okay, of any other ANTC, question? is there any other question? Yeah, I have one last question. With taxation help, who is your ideal client? Last question. अच्छा, आइडियल क्लाइंट हमारे एक Yeah. क्लाइंट है, वो काम कर रहे हैं जो कारपूल वाला सिस्टम है, और वो काफी आगे तक पहुंच चुके हैं उसमें। मतलब बिल्कुल एग्जीक्यूशन के बाद भी उन्होंने फर्स्ट 100 कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर लिया है। तो अगर मैं कहूँ आइडियल क्लाइंट, तो उन्होंने एक्चुअली में हर एक स्टेप पे काफी अच्छी चीजें की थी, प्लानिंग से लेकर उन्होंने उन्होंने अपना ये स्टार्टअप के लिए एमबीए भी किया है उन आईआईएम से जो कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, ऑनलाइन होता है, तो वो वाला एमबीए भी किया है। तो उन्होंने बहुत प्रिपरेशन की है, बहुत मेहनत की है। एक्चुअली में वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे और ना ज्यादा उनके पास फंड्स थे, बट बिकॉज उनमें बहुत ज्यादा पैशन था, उन्हें पता था ये आइडिया है। और मैं बताऊं तो कारपूल कुछ नया आइडिया नहीं है, राइट? बहुत सारे स्टार्टअप्स ऑलरेडी इस पे काम करके जा चुके हैं, फ्लॉप भी हो गए, कुछ चल भी रहे हैं और कुछ लॉसेस में भी चल रहे हैं, राइट? Right. तो बट उनमें मैंने देखा वो डेडिकेशन की, वो उसके लिए बहुत ज्यादा सीरियस थे। उन्होंने जॉब, मैं बताऊं आपको कि उसने जॉब अभी तक नहीं छोड़ी है, अपनी जॉब के साथ साथ उन्होंने ये चीजें की है। तो बहुत Wow. बड़ी बात है मेरे लिए, और हम सब उन पर बहुत प्राउड करते हैं। मैं जल्द ही उनकी डिटेल्स शेयर करूंगी अपने प्रोफाइल पर, तो आप चेक कीजिएगा। बट अभी कुछ चीजें पेंडिंग है हमारी, तो हम उसका वेट कर रहे हैं, फिर हम अनाउंस करेंगे। Okay, Yes. and Thank that you guys. podcast Thank you you're for the having, session. and that podcast you're having, where will it be? The start. You mentioned some podcast now that you'll be having at tomorrow. It will be on my channel, Instagram. Oh, all right, all right. Which Acha, podcast. That is not podcast. That will be on Instagram on 6th of March evening, 6 p.m. or 5 p.m. So I Oh, will inform you by today and or tomorrow and key timing क्या होगे. Otherwise 6 March is fixed. cool. Thank It you. will be And with yeah, Dr. Ritesh Malik. Hmm. yeah. Thank you. I got it. Cool. Thank you. All the best for your Okay. startup.
So Thank I hope you. I hope there is no further queries. On behalf of ANDC, I extend a really hearty vote of thanks to Neha ma'am, who spared time from her busy schedule to grace the occasion. Today, we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be going to encourage us in our future events. Thank you so much, ma'am, for such an inspiration talk. थैंक यू सो मच. आई होप इस टॉक के बाद कुछ तो लोग हैं या कुछ तो यंगस्टर्स है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान करना स्टार्ट कर दे. तो ऑल द बेस्ट गाइस, एंड मुझे मत भूलिएगा, मेरी सर्विसेज जरूर क्लेम कीजिएगा. थैंक यू. Yeah, अवेल कीजिएगा. sure, ma'am, sure. So here we Sure, present sure. our digital memento to express gratitude for accepting our invitation. Thank you so much, ma'am. It was really a great pleasure to hear you today, and you really inspired us a lot. Thank you so much for accepting our invitation. Our principal sir Okay, has thank you also guys. told Tisha, so Yes, you ma'am. can Yeah. invite. Yeah, I'm calling him. So yeah, thank you so much, ma'am. And now I would like to call our respected principal sir to please speak a few words about Corpomaze. Hanji, thank you, Tisha. First of all, very warm good morning to all of you. And it's really very good to see so many students coming for this Corpo Maze. And congratulations to Commerce Department. And I think the Commerce Department of the college is the pioneer in doing all the activities. Yesterday there was an alumni meet, and I have heard that it was a grand success. And today they are organizing Corpo Maze. So it's really amazing to see you all people doing wonders and not letting the pandemic hinder your what we can say your energy and enthusiasm. And I have heard that the performance by Shivam Trivedi was excellent. And I have heard that motivational talk by Neham also, and it was very inspirational and motivating to the students. And you people have interacted well with her. And good, all the best to you, and hoping that you will keep amazing us again and again. Thank you. All the best. Carry on with your activities of Corpomis. Good luck and good work done, teacher in charge Shalu and her team, all the faculty members of Commerce Department, and obviously without students it would not have been possible. So good, good. Carry on. Keep it up. Thank you so much, sir, for your words of wisdom that radiated a source of energy within us, and we will ever remain grateful to you. And we thank you for being with us today. Thank you, beta. Thank you. Good, great going. Thank you so much, sir. Thank you, Dr. Ravi. Thank you. Thank you, Shalu. Thanks. Okay, so now I would like to call the president of Vanijay, that is Pratishtha Bis, to please give vote of thanks. Good morning to one and all present here. First of all, I would like to thank our principal sir for his precious words. So, I want to thank all our faculty members who always stand by us, guide us, lead us, and motivate us. We feel proud and thank you for making us feel happy and so overwhelmed with your presence at this function. An event of this dimension cannot happen overnight. The wheels start rolling months in advance. We have been fortunate enough to be backed by a team of very motivated and dedicated student committee and volunteers. I cannot thank everyone enough for the involvement that they have shown and the willingness they have expressed to take on the competition of tasks beyond their comfort zone. Last but not the least, I thank all the students for showing the interest in this program. Thank you, everyone. Okay, so lastly, we have put our Instagram, YouTube channels link in the chat box along with the feedback form. So do follow us to keep yourself updated with Vanijay and the Commerce Department. And please fill the feedback form, the link of which is given in the chat box. Thank you so much for joining us today. Without a good audience, this event would not have been this much successful. So once again, thank you so much, everyone. Do subscribe to our channels and follow our Instagram handle and fill the feedback form. Thanks a lot, everyone. Share links for other events also with the students so that they can participate. Ma'am, Or maybe actually, they can be there.
Ma'am, we have already made, separate groups for each event for those people who have registered, so they'll be getting links there only. Okay, sure, good. Yeah, all right. Chalo. Thank you so much, ma'am. Best Thank of you so luck. much, All right. everyone, for joining. Bye. Bye. Bye, Bye, beta, sir. bye. Bye. Bye, ma'am.